رمضان رمضان رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق جان۔ آپ پروگرام رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جو ہم روزانہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا حاجی عبدالغفور ساجد الوری صاحب۔ مہربانی ان کی، روزانہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے، ماہ مبارک کے روزوں کے حوالے سے فضائل رمضان بیان کرتے ہیں۔ آج پھر ہم آپ کے لیے کوئی نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں، نئے سوالات ہوں گے اور ان پہ آپ کو اپنا قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت صاحب بتائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حضرت صاحب سے۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بڑی مہربانی جی، آپ تشریف لائے۔ تو آج جو ہے اپنا 7واں رمضان المبارک ہے، تو اس کے حوالے سے ناظرین کو کچھ باتیں بتائیں گے تاکہ ناظرین مستفید ہو سکیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں بھائی محمد فاروق جان اور تمام ناظرین کو آج کے پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں اس مبارک پروگرام کے ساتھ جوڑا ہے، جس کے اندر مسلسل میری گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت سیدنا سید الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت کا وصال، اور اس کے بعد سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال، اور اسی مبارک مہینے کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں پہ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس مبارک مہینے کے اندر عظیم کتاب قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہی وجہ سے ماہ رمضان کو فضیلت بخشی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر واضح ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے واسطے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ ماہ رمضان المقدس کا مہینہ تھا، اور پھر اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات کا انتخاب کیا جو اس مہینے سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ بھی قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا گیا، اور پھر یہ بھی قرآن کریم ہی بیان فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا جس رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا وہ رات تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
माह रमज़ान को अगर कुरान की वजह से फजीलत अता फरमाई है तो जो मुसलमान कुरान करीम के साथ अपनी वाबस्तगी करेगा अल्लाह उसे भी फजीलत अता फरमाएंगे। इसकी मिसाल यूं लगा लें, एक हमारे ख़ानदान से, हमारी बस्ती से, हमारे मोहल्ले से आम बच्चा कुरान करीम का हाफिज है, तो कुरान करीम ने उसे ये अज़मत अता फरमाई है कि वो मुसल्ले पे तमाम चौधरी और तमाम बड़े लोगों से आगे खड़ा होता है। फिर कुरान करीम के साथ एक कपड़े को हम उसका गलाफ बना के, जुज़दान बना के कुरान करीम के साथ शामिल कर देते हैं, उसकी निस्बत कुरान करीम के साथ जुड़ जाती है। तो कुरान करीम का जो एहतराम है वही उस कपड़े का एहतराम हो जाता है, क्योंकि कुरान करीम के साथ उसका ताल्लुक जुड़ा है। इस वजह से उस कपड़े को भी वही अजमत और शान और मकाम मिली है जो कुरान करीम को हासिल है। लोग सिर्फ कुरान करीम का एहतराम नहीं करते बल्कि उस कपड़े का भी एहतराम करते। सिर्फ कुरान करीम को बोसा नहीं देते बल्कि कुरान करीम के साथ जो जुज़दान लगाए हम उसे भी बोसा देते हैं। हम जो है कुरान करीम की वजह से उस कपड़े का एहतराम कर रहे हैं। वो कपड़ा जो हमारे जिस्म पे या किसी चौधरी के या वजीर के जिस्म पे, उसको वो शान हासिल नहीं जो उस कपड़े को हासिल है जो कुरान करीम के साथ जुड़ा हुआ है। ये शान कुरान है, शान कुरान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुबारक को भी कुरान करीम की वजह से अज़मत अता फरमाई है। मैं गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर अर्ज़ कर रहा था कि कुरान करीम पूरे साल कभी जबरील अल्लाह के नबी से कुरान करीम का दौर करने के लिए नहीं आए। सिर्फ रमज़ान मुबारक के अंदर जबरील अमीन आसमानों से उतर के अल्लाह के नबी के साथ कुरान करीम का दौर करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जबरील को जब आखिरी रमज़ान अल्लाह के महबूब का था तो एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौर करने के लिए भेजा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताई तो आप समझ गई कि ये मेरे अब्बा हुजूर का आखिरी रमज़ान है, इसलिए जबरील 2 मर्तबा आपसे दौर करने के लिए हाजिर हुआ है। नाज़रीन, शान कुरान बयान कर रहे थे हज़रत साहब बड़े अच्छे अंदाज में। आज कल एक करंट इशू जो है, आज हज़रत साहब से कुछ इस पर बात करते हैं, ख़त्म नबूवत का, जो हम सब की ज़रूरत है, बल्कि हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन जिसे कहते हैं, कि हमारी जो हुकूमत है उसने कादियानियों को जो अक़लियती कमीशन का जो है अपना वो हिस्सा बना लिया है, वो किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से बनना चाहिए, ये हज़रत साहब आपसे बात करेंगे कि इसके बारे में वो बेहतर जानते हैं कि उनको गैर मुस्लिम तरीके से उसमें शामिल किया गया है या मुसलमान भी रहें और अक़लियती कमीशन का हिस्सा भी बन जाए, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम हज़रत साहब से बात करते हैं। हज़रत साहब इस पर तफसील से आपको बताएँगे और ख़त्म नबूवत जो है वो क्या चीज़ है उसके बारे में आपको बताएँगे। जी हज़रत साहब। देखें भाई फारूक जान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है और करनी भी चाहिए, क्योंकि मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे मोहर तो कुरान करीम ने भी लगा दी है। कुरान करीम के अंदर वाज़ेह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन बना के भेजा। फिर दूसरे नंबर पे अल्लाह के महबूब का इरशाद है, ये बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर मेरे बाद किसी ने नबी होना होता तो वो फारूक आज़म है, उनके अंदर ये सलाहियत है कि अल्लाह उन्हें इस मनसब पे फायज करता। अल्लाह के नबी के इस फरमान से वाज़ेह हो गया, अगर हुजूर के बाद सैयदना फारूक आज़म को ये मनसब नहीं मिला
तो किसी और को भी नहीं मिल सकता। और फिर मुसलमान के लिए लाजम और मलजूम है ये चीज़ कि वो हुजूर की रिसालत का इकरार न करे, बल्कि हुजूर की खत्म नबूवत का इकरार करना लाजिम है। उसके बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। और आज से कई साल पहले पाकिस्तान बनने के बाद जो तहरीक खत्म नबूवत चली, उसका यही मिशन था कि जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया तो मुसलमानों ने खत्म नबूवत की तहरीक चलाई उसके मुकाबले में, जिसमें बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम थे। और उन उलमा इकराम ने इस बात का अलल ऐलान इजहार किया कि लोगों, हम अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत के बाद किसी की नबूवत को जो है नहीं मानते, और जो किसी और की नबूवत का इकरार करेगा वो बेशक उसके कुफर में कोई शक नहीं है, वो लाशक काफिर है। तो अगर जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मानने वाला आज अहमदी वो ये ऐलान करता है कि भाई हम मुसलमान हैं, तो कोई मुसलमान का बच्चा भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वो हजार ऐलान करता फिरे, वो बारहा इस बात का इकरार करे कि भाई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी है, हम उसे मरदूद कहेंगे, हम उसे मलून कहेंगे, हम उसकी इत्बा करने वालों को काफिर कहेंगे, दायरा इस्लाम से खारिज कहेंगे। सर साहब, जो 1973 का आइन में जब इनको अक़लियती तस्लीम कर लिया गया और इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, इनकी हुकूमत में 2 सीटें मेरे ख्याल रखी, वफाक में और सूबाई में, इन्होंने नहीं माना, इन्होंने हम नहीं मानते, अपने आप को मुसलमान कहते रहे। आज जो हुकूमत ने इनको अक़लियती कमीशन के दायरे में दाखिल किया है गैर मुस्लिम करार देकर, इसके बारे में क्या ख्याल है, होना चाहिए या नहीं? देखे भाई फारूक जान साहब, ये सेहरा वजीर आजम जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के सर पे जाता है। उन्होंने बाकायदा कानूनी तौर पे इनको काफिर करार दिया, बिल्कुल ऐसे। ये सेहरा उनके सर पे, इसमें उलमा की कुर्बानियां तो हैं बहुत ज्यादा। और 73 का कानून जो था, यानी 18वीं जो तरमीम है, ये उलमा की मुशावरत से कानून बनाया गया। अगर जो है आज की हमारी हुकूमत, वजीर आजम इमरान खान या हमारी आज की काबीना उन्हें अक़लियत के दायरे में रह के, अक़लियत के दायरे में रह के अगर असम्बली के अंदर, वफाक के अंदर या सूबों के अंदर कोई हिस्सा देती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये हर उस इंसान को हक हासिल है जो पाकिस्तान में बसने वाला है। वो अक़लियत में ईसाई है, वो अक़लियत के अंदर हिंदू है, वो अक़लियत के अंदर मिर्ज़ाई है, वो अक़लियत में किसी भी जो है यानी जमात से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो मुसलमान कहलाने का हक नहीं रख सकता। जो अक़लियत कमीशन में शामिल हो गया उसे मुसलमान ना कोई तसव्वुर कर सकता है और ना वो मुसलमान रह सकता है। नाज़रीन, आपने सुना, हज़रत साहब ने आपको वाज़ेह बता दिया है कि अक़लियत क्या है, 73 का आइन क्या कह रहा है, और मिर्ज़ा कादियानी और कादियानी क्या है। बात आ जाती है आज की हुकूमत की। अगर उन्होंने इसको अक़लियती कमीशन में अपना हिस्सेदार बनाया है पाकिस्तान के कानून में, वो गैर मुस्लिम करार देकर, तो ठीक है, हम भी यही चाहते थे कि ये गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम रहेंगे, क्योंकि ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। क्यों, नबी तो सारी दुनिया मानती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन ये नबी के साथ साथ ये आखिरी नबी मिर्ज़ा गुलाम कादर कादियानी को मानते हैं, इसलिए ये मुसलमान नहीं रह सकते, ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं। जो ख़त्म नबूवत का इनकारी है वो काफिर है और काफिर ही रहेगा। तो आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि अक़लियती कमीशन क्या चीज़ है। उसमें मुसलमान होकर अक़लियती कमीशन का हिस्सा बन ही नहीं सकता कोई बंदा। अगर अक़लियती कमीशन का हिस्सा बनता है तो सिर्फ वो गैर मुस्लिम अपने आप को तस्लीम करता है,
تب جا کے وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے. اور آج کی حکومت اگر کر رہی ہے ان کو غیر مسلم قرار دے کر، جو کہ پہلے دیے جا چکے ہیں، حضرت صاحب نے بتا بھی دیا آپ کو، لیکن آج اس پہ اگر عمل ہو رہا ہے تو میرے خیال سے ہم بھی یہی چاہتے تھے بھی یہ غیر مسلم ہیں، یہ مانے کہ ہم غیر مسلم ہیں وہ اقلیت اور اقلیت ہیں. تو آج انہوں نے اگر تسلیم کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے. تو ناظرین یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور آپ یہ ماہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اپنا حضرت صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی حضرت صاحب. آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تمام علماء کی اپیل بھی ہے تمام مسلمانوں سے، تمام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے پیار کرنے والوں سے، کہ وہ علل اعلان ختم نبوت کا نعرہ لگائیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور قادیانیوں کے ہر جو ہے ان کے شعبے سے، ان کی ہر چیز سے بائیکاٹ کریں علل اعلان، کہ جو ان کی چیز ہے اسے بالکل نہ خریدیں، اس کا بائیکاٹ اعلان کر دیں. جی ناظرین، آپ نے حضرت صاحب کا آخری پیغام سن لیا ہوگا جو انہوں نے بات کی. تو اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا وائنڈ اپ کرتے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا، آپ اس ہمارے میو نیوز چینل پہ جو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو یوٹیوب پہ جائیں، وہاں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن جو ہے، بیل آئیکن کی جو گھنٹی اس کو پریس کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو آپ ہماری رمضان کے حوالے سے ملتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں.